Okay, students, let us start with our chapter. That is lesson 7, weather, climate, adaptations. Is there any doubt regarding yesterday's lecture? कोई किसी तरह का भी doubt हो, you can ask me now. If not, we'll continue. But I guess yesterday, okay, Arish, got your message. Yesterday we covered up to polar areas. हमने weather करा, climate करा, then we covered up to polar areas. So in case of habitats, we did, there are basically 3 habitats. They are, जो हमने discuss करने हैं, they are polar areas, they are deserts, and there are tropical rainforest, right? If you remember, so yesterday we had covered polar areas. We had covered polar bear and we had covered penguin, right? So today we are going to start with the desert. हमने desert तो नहीं करा था कि हो गया था? Could anybody tell? Desert was done or it was left? No. Okay. Let us start with desert. So बच्चे, when the word desert comes, सबसे पहले हमें माइंड में लेके आना है, जब भी कभी अडेप्टेशंस वी हैव टू स्टार्ट, वी हैव टू कंसिडर कि वो एरिया, उसकी कंडीशंस कैसी हैं, उसकी सराउंडिंग्स कैसी हैं जहाँ पे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहा है. देन इट विल बी इजी फॉर अस टू नो अबाउट द अडेप्टेशंस, राइट? सो डेजर्ट में क्या है? लेस रेनफॉल और नो रेनफॉल, sand, right? Sand is there, so it is very hot. Got it? अगर sand है तो गर्मी भी बहुत है, right? So बच्चे, dry place है, it means there is less rainfall. So students, the best suited animal to this area is camel, and the best suited plant is cactus. Right? So we will be doing the adaptations of camel and cactus both. First, let us start with the camel. First is camel. Camel की क्या adaptation है? First is hump. Hump is there. I hope it is visible from this side. दिख रहा है ना यहाँ से board? Yes, hump. Hump क्या करती है? Store fat. What is the role of hump? It store fat. बच्चे, when the food is eaten by, actually camel eat lot of food. Where it find the food, it eat it. And the extra food is stored as fat in the hump. Now the camel is able to survive for so many days without the food. How? Because this stored fat, which is stored in the hump, it is serving the purpose. That is why it do not feel hungry, right? Then number 2, after hump, next adaptation is water gets stored in stomach, right? Water is stored in stomach. It can live without water for so many days because water is stored in stomach, right? Then number 3, coming to number 3, that is it sweats very little. अब पानी तो स्टोर कर लिया, बट उसको स्टोर करने के लिए it has to sweat very little, excrete very little, excrete very little water in urine, right? Excrete very little water in urine. Then dry dung, इसका dung भी dry होता है. Okay. Then number 6, after this it has nostrils that it can close, nostrils to close to keep the sand out. Nostrils को बंद कर लेता है ये ताकि sand बाहर रहे.
राइट. नाउ नेक्स्ट मैं यहां लिख रही हूं large soul to walk on sand. सैंड पे चलने के लिए to walk on sand. Then long legs to keep the body away. ठीक है, बॉडी दूर रहती है सैंड से, फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड. राइट. होप द adaptations of camel are very clear to you. Now let us move the cactus. बच्चे, cactus is the best suited plant in desert. I am not going to write. Yes, Bani, you want to say something, beta? हाँ जी बेटे. Good morning, ma'am. हाँ जी बच्चे. Good morning, ma'am. मॉर्निंग. मैम हमारी बुक के पेज नंबर 74 पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि डू फिशेज एंड बटरफ्लाइज आल्सो माइग्रेट लाइक बर्ड्स. मैम इसका आंसर क्या होगा? डू फिशेज एंड, आई कुडंट हियर यू. डू फिशेज एंड बटरफ्लाइज आल्सो माइग्रेट लाइक बर्ड्स. तो मैम इसका आंसर क्या होगा? यस यस यस. इफ यू रिमेंबर मोनार्क बटरफ्लाई 5th 6th में हमने करा है. फिशेज ऑल्सो दे मूव फ्रॉम वन वाटर टू अदर. मतलब सम फ्रेश वाटर फिशेज दे माइग्रेट टू ले एग्स. राइट. सो आंसर इज यस. ओके. यस मैम. थैंक यू. Okay. Next is I was on cactus. Cactus, but cactus is the best suited plant here. You know, cactus, its leaves are reduced to spines. So photosynthesis is done by stem. The stem is green to do photosynthesis and it becomes fleshy to store food, right? Then the roots of the cactus, they go deep under the ground to absorb water. I hope all these things are clear to you. Next, beta, apart from camel, no problem, Avni, no problem. We are talking about animals here. So cactus, so just example I gave you, right? Then apart from camel, there are certain other kind of animals that are also found in desert areas. They are nocturnal animals. Nocturnal. Bache, could you tell what are nocturnal animals? If anybody could answer. Yes, Pulkit, would you answer? No, Avni. If it is not given, it will not come. Pulkit. He is not responding at all. Okay. Arish Sharma. Yes, ma'am. Hanji, answer it. Ma'am, the animals which move on to the land at night to find their food and etc. are known as nocturnal animals. Couldn't understand, Arish. What do you want to say? मुझे समझ ही नहीं आया आपने क्या बोला. Ma'am, the animals which are, ma'am, what can we say that, ma'am, which awake on night to, ma'am, what are nocturnal animals? Gurdit, would you like to answer? Yes. Most animals which live in the desert spend daytime hiding in the shady places. Shady places means where there is shade. They come out at the night to find food. बेटा बुक को सारा कॉपी मत करो, समझो. they ठीक है. What are nocturnal animals? Animals that some animals that are found in desert areas, they during the day because it is very hot, so they hide at some shady place, right? Or they sleep during the day to avoid heat, and at night when it is cool, they come out and they find their food, right? Okay, hope it is clear to all. Now after this,
Okay. Let me ask. Hanji Harmanpal Singh, what is your doubt? गुड मॉर्निंग मैम। Yeah. मैम अभी आपने बताया कि नॉकटर्नल एनिमल्स जो होते हैं मैम वो दिन में सोते हैं टू अवॉइड हीट। मैम दिन में अवॉइड कैसे हो सकती है हीट? मैम वो Because some किसी animals, शेड के they नीचे go सोते हैं। inside the burrows, right? And few others, they find the shady places under the tree or somewhere, right? They cannot move on sand as such, like camel. Okay, so they avoid it. It is very much Okay, clearly given. Either they go themselves, either they go inside their burrows, or they find some shady place to avoid coming थैंक out. यू मैम। Right? Okay, students. After this, deserts are complete, nocturnal animals are complete. Now coming to the next topic, that is tropical regions, tropical rainforest. What are tropical areas? Would anybody tell? ये तो आपका SST का topic है. Tropical areas क्या होते हैं? What are tropical areas? ट्रॉपिकल एरियाज क्या होते हैं? No, Pulkit, owl is not the example of nocturnal animals because owl is not found in sand. और उसका रीजन ये नहीं है, उसका रीजन उसकी आई साइट है. दैट इज वाई इट इज नॉट एबल टू ओपन द आईज ड्यूरिंग द डे. ओके, यस बानी. Ma'am, tropical region gets a very high rainfall, and when You are not there are audible to me, summers, Bani. tropical region get a high range of rainfall, and when there are summers, there are Simply I asked, what are tropical regions? Prabal, I am not talking about rainforest. The right? areas near the areas near the equator are known as tropical areas. Yes, the areas which they- are near the equator, they are known as tropical areas, right? That lie close to the equator, that lie near the equator. And what about rainforest? Because they receive plenty of rainfall, right? That is why they are known as rainforest, right? तो इनका क्लाइमेट कैसा होगा? हॉट एंड ह्यूमिड, क्योंकि इक्वेटर के पास है, सो दे आर वेरी हॉट, बहुत सनलाइट रहती है. बिकॉज रेनफॉल इज ऑल्सो देयर, तो इट इज ह्यूमिड, मीन्स एयर हैज ह्यूमिडिटी इन इट, राइट? मीन्स दोनों चीजें हैं. इट हैज सनलाइट ऑल्सो एंड रेनफॉल ऑल्सो. That is why hot and humid. They receive sunlight for 12 hours. About 12 hours. 12 घंटे के करीब इनकी सनलाइट रहती है इन एरियाज में, राइट? तो बच्चे, most of the animals and plants, they are found in a tropical rainforest. Why? Due to the proper living conditions, suitable living conditions. Most of the organisms in this world, they are found in rainforest. So we will be doing few. सबसे पहले है elephant. बच्चे, एलिफेंट की अगर हम बात करें, आई सॉ योर नोटबुक्स, इतना गंदा आंसर लिखा हुआ है आपने. अगर एलिफेंट की अडेप्टेशंस आती हैं तो आपको 3 मेजर पॉइंट्स बनाने हैं, राइट? फर्स्ट विल बी, यू विल बी टॉकिंग अबाउट द ट्रंक और नोज, तो मैंने ये ट्रंक बना दिया. सेकेंड, इट विल बी a tusk or teeth, right? और थर्ड, इट विल बी ears. यहाँ पे नजर आ जाएगा, इधर लिख देती हूँ. थर्ड, इट विल बी ears, राइट? ये 3 मेजर अडेप्टेशंस हैं इन केस ऑफ एलिफेंट.
सो बच्चे इसमें और इसमें आप लोग बहुत कंफ्यूज करते हो, कॉपीज में इतना गंदा काम किया हुआ है, राइट। सो ट्रंक जो क्या है, एक्चुअली इट इज इलोंगेटेड नोज, नाक बड़ी हुई है। व्हाट इज ट्रंक? इट इज इलोंगेटेड नोज, राइट। सो इसका पहला फंक्शन क्या है? इलोंगेटेड नोज का पहला फंक्शन क्या है? First is, please stop sending me the messages, Harmanpal. It has strong sense of smell. क्योंकि नाक बहुत बड़ी है तो स्मेल बहुत ज्यादा है. It has strong sense of smell. Then बच्चे, it uses its long trunk to pick the food. To pick food. Right, students? Then it uses trunk for drinking water. Third क्या हो गया? Trunk to drink water by sucking. ये से suck करता है. And then it put it into the mouth. ये थी trunk की. Okay. Now we are coming to tusk. Tusk क्या होते हैं? Tusk are modified teeth. Tusk क्या है? Modified teeth, right? Now tusk का क्या रोल है? Tear of the bark. यहाँ पे नजर नहीं आएगा आपको, मैं बता देती हूँ. Tear the bark, bark को छिलने के लिए. राइट, चलो मैं नीचे कर देती हूँ कैमरा. ओके, टीयर ऑफ द बार्क. देन बच्चे, फाइटिंग विद एनिमीज, मतलब प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज. इज इट विजिबल हियर? प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज. ये इन टस्क की हेल्प लेता है क्योंकि पॉइंटेड होते हैं, लॉन्ग एंड पॉइंटेड होते हैं. लॉन्ग एंड पॉइंटेड टीथ होते हैं ये टस्क, लंबे और पॉइंटेड मॉडिफाइड टीथ, राइट. तो ये टस्क का रोल हो गया. थर्ड हमने लिखे थे ईयर्स. ईयर्स का क्या फंक्शन है? दे आर लार्ज, वेरी लार्ज. लार्ज ईयर्स, इसका क्या रोल है? टू हियर द स्लाइटेस्ट साउंड. छोटी सी भी साउंड इनको सुनाई देती है, जिस वजह से टू हियर द स्लाइटेस्ट साउंड. ड्यू टू दिस साउंड दे कैन फाइंड देयर एनिमी, राइट. दे कैन सेंस द डेंजर. देन ड्यूरिंग समर्स दे कैन फ्लैप द ईयर टू गेट एयर. इसको हवा देती है. जल्दी जल्दी खत्म करें, क्लास ओवर होने वाली है. इस तरह से आप लिखना है. हाँ जी प्रबल बोलिए, आपको क्या डाउट है बेटा? वेयर इज प्रबल? वेयर इज प्रबल? प्रबल, आई कुडंट फाइंड यू. ओके, हियर इट इज. यस प्रबल. मैम जैसे मैम इनकी लाइटेस्ट साउंड हियर कर लेते हैं मैम, कितने किलोमीटर के रेडियस में तक कर लेते हैं? नॉट फ्रॉम द किलोमीटर रेडियस वी आर टॉकिंग अबाउट. अगर आसपास कोई छुप के बैठा है इसको हंट करने के लिए, किल करने के लिए, तो थोड़ी सी मूवमेंट इसके कानों में आ जाती है, राइट. गॉट इट? ओके. ओके स्टूडेंट्स, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल. Now let us move to the next organism, that is red-eyed frog. Red-eyed frog, as clear from the name. मैंने आपको I guess दिखाया भी था जब क्लास में समझाया था. I showed you while sharing the screen. बच्चे red-eyed frog क्या है? इसकी frog है, इसकी बड़ी बड़ी लाल रंग की bulging eyes है, बाहर को निकली हुई. Bulging means बाहर को निकली हुई. इस वजह से इसको red-eyed frog बोलते हैं. ठीक है. ये ट्रीज पे रहता है. स्टिकी पैड्स हैं इसके. स्टिकी मीन्स चिप चिप करते हैं, जिस वजह से ये क्लाइंब कर पाता है ट्रीज पे.
राइट। नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म आ गया आपका टॉकन। टॉकन जो है इसकी बर्ड है, ये लंबी कलरफुल बीक होती है। इसकी बीक का जितना वेट है वो कितना है, इसकी पूरी बॉडी वेट के आधा। जितना इसका पूरी बॉडी का वेट है ना, उसका हाफ वेट उसकी बीक का है। राइट, इज दैट क्लियर? सो ये बीक बहुत ही ये बर्ड जो है, जो वीक प्लांट्स है, जिनकी वीक ब्रांचेस है, जहाँ पे बाकी के प्लांट्स बर्ड्स के बैठने का डर होता है, टूटने का डर होता है, ये वहां पे पहुंच के अपनी बीक से वहां से भी फूड निकाल देता है। राइट, ये इसकी खासियत है। देन आ गया नेक्स्ट टॉपिक है आपका लायन टेल्ड मकाओ। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। लायन टेल्ड मकाओ है जो, इसको हम बियर्ड एप भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन आता है पेपर में। बियर्ड एप किसी भी फॉर्म में आ सकता है, 1 2 3 4। व्हाट इज बियर्ड एप? लायन टेल्ड मकाओ। इसका नाम क्यों पड़ा? व्हाई इट इज कॉल्ड बियर्ड एप? बिकॉज ही इज हैविंग अ सिल्वर वाइट मेन। सिल्वर वाइट कलर की मेन है जो इसके हेड से शुरू होती है, चीक्स से होती होती चिन तक चली जाती है। राइट, जैसे दाढ़ी होती है, दैट इज वाई इसको बियर्ड एप बोलते हैं। राइट, इसकी जो टेल है दैट इज मीडियम साइज, बट उसके पीछे ब्लैक कलर की एक टफ है, जैसे कि लायन की होती है। राइट, लायन की जैसे टफ होती है वैसे इसकी ब्लैक कलर की टफ होती है। खाता पीता क्या है ये? ज्यादातर फ्रूट्स, फ्लावर्स, सीड्स। राइट, और कई बार छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो ट्रीज की बाक्स के अंदर होते हैं वो भी खा लेता है। राइट, ये जो है अक्सर इसको अपना फूड जो है ट्रीज के ऊपर ही मिल जाता है। राइट, क्योंकि ट्रीज पे ही रहता है, तो ये बहुत कम नीचे आता है, ट्री से नीचे उतरता ही नहीं है, क्योंकि इसको अपना सारा फूड, फल पत्तियां सारी ट्रीज के ऊपर ही मिल जाने हैं। सो इट रिमेन ऑन द ट्रीज। तो ज्यादातर टाइम ये कहाँ पे स्पेंड करता है? अपना ट्रीज के ऊपर। ओके, आई गेस दिस इज क्लियर टू यू, बियर्ड एप। नेक्स्ट आ गया अडेप्टेशंस इन मंकीज। बच्चे मंकीज में क्या अडेप्टेशंस हैं? आई गेस मैंने एक चीज छोड़ दी, बिग कैट्स। बिग कैट्स, मंकीज करने से पहले बिग कैट्स कर लो। बिग कैट्स, बच्चे बिग कैट्स क्या होती हैं? कैट, लायन, टाइगर, ये सारे कैट्स की फैमिली के हैं, क्योंकि बड़े हैं कैट से, सो दे आर कंसिडर्ड एज बिग कैट्स। लेपर्ड्स जो हो गए, ये सारे कैट्स की, बिल्लियों की कैटेगरी में आते हैं, ये उन्हीं की फैमिली के हैं, उनके भाई बंधु। ओके, सो दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कैट्स बिकॉज देयर साइज इज बिग, सो दे आर नोन एज बिग कैट्स। Is that clear to you? Next is what are the adaptations? बच्चे बिग कैट्स हमने माइंड में रख के चलना है, लायन और टाइगर, दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये दूर से अपने प्रेडेटर को सूंघ लेते हैं। राइट, जिस वजह से ये क्या होता है, स्मेल की वजह से इनको पता चल जाता है इनका प्रे कौन सी जगह पे है, so they start moving towards that side. Right, then next is इनका जो कलर है येलो ब्राउन कलर, it helps to camouflage. Okay, this color help them to hide in the dry branches so that they can easily catch their prey. Right, then they have very sharp eyesight to find their prey. Okay, they run very fast. Speed आपको मैं बता ही चुकी हूँ. They run very fast while catching the prey, and they have long and sharp claws to catch the prey, and strong teeth to tear the flesh. Got it? Now last हमारा जो organism रह गया, monkeys. मंकीज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बच्चे? मंकीज दे लिव मेनली ऑन द ट्रीज। राइट, दे हैव लॉन्ग टेल्स, सबने देखे होंगे मंकीज, लॉन्ग टेल्स होती हैं। दीज टेल्स आर सो लॉन्ग दैट दे कैन होल्ड द ब्रांचेस। दे मूव, अपनी टेल को रोल कर लेते हैं ऑन द ब्रांच एंड दे कैन मूव। राइट, दिस यू ऑल नो। देन दे हैव hands and feet in such a way that they can easily grasp the branch, they can easily hold the branch. गिरते नहीं है ये, इस तरह से इनके पैर और हाथ हैं कि ये होल्ड कर लेते हैं उसको अच्छे से। राइट, देन दे हैव
very strong, you can say, hind limbs to jump. Then they have opposable thumbs. Opposable मतलब उल्टे, इस तरह से thumbs होते हैं कि ये grasp कर पाते हैं चीजों को, right? Is that clear? Last topic is, after this सारे एनिमल्स हमने पढ़ लिए. आफ्टर दिस एक चीज कहना चाहूंगी, वी शुड बी केयरफुल इनफ टू प्रोटेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दीज एनिमल्स. वी शुड टेक केयर ऑफ अवर इन्वायरमेंट. हमें फॉरेस्ट नहीं डिस्ट्रॉय करने, हमें इनका नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय नहीं करना. अगर इफ वी आर डिस्ट्रॉइंग देयर नेचुरल हैबिटेट, दे विल नॉट सर्वाइव एंड वन डे they will extinct, right? Like we did with so many organisms. The you can say dinosaurs, they were also extinct due to weather conditions, they could not adapt. उसमें हमारा कोई रोल नहीं. But dodo, it was extinct due to human interference. ठीक है, अब इंडिया में बहुत कम टाइगर्स रह गए हैं. Reason being human interference, cutting of forest. So we should be there to protect the environment. Okay, now if there is any doubt, you are most welcome to ask. हरे आप. अब क्वेश्चन ये आता है बेटा कि हम कैसे इनको बचा कैसे सकते हैं. हमें पता तो है, हमें पता तो है, पर हम बचा कैसे सकते हैं इनको. क्या करना है हमने? वी हैव टू हेल्प एनजीओज. जो एनजीओज इनकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, उनकी हमें हेल्प करनी है इन प्रोटेक्टिंग देम, राइट? उनकी स्पीशीज को उनका नेचुरल हैबिटेट दो जहां पे वो ग्रो करते हैं. प्रोटेक्टिंग देयर नेचुरल हैबिटेट, राइट? हेल्पिंग द एनजीओज. देन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज क्रिएटिंग अवेयरनेस. फॉर मी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हर बंदे को हमें जागृत करना होगा. It could be done from schools also. Awareness is started from schools. By educating you, by awareing you, you are going to be the society, our future society, right? If we are able to create awareness among you people are going to save our habitat, right? In this way, then कैसे अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं? वन ऑफ द मेथड बाय टेलिंग यू, बाय एजुकेटिंग यू, देन बाय हैविंग स्ट्रीट प्लेज. ठीक है, फंक्शंस हम कर सकते हैं, पोस्टर्स हो सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू वी कैन क्रिएट अवेयरनेस. देन बेटा, गवर्नमेंट हैज फॉर्मुलेटेड सर्टेन लॉज, राइट? उन लॉज को हमें मानना है. ओके, नाउ वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर ऑल्सो. वीडियोस मैंने सॉइल वाले के बना दिए हैं, यूट्यूब पे अपलोड हो गए हैं. फ्राइडे सैटरडे को आपका वीडियो डे है. नेक्स्ट वीक हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन वाला चैप्टर है हम वो करेंगे क्लास में, और 2 वीडियोस जो हैं वो आपके इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के आएंगे. गॉट इट? हाँ जी गुरनूर, व्हाट डू यू वांट टू से? मैम एक बार आप लायन टेल्ड मकाओ करवा दो. क्या? लायन टेल्ड मकाओ? मकाओ. Lion-tailed macaw is also known as beard ape. Why? Because it has a silver-colored, silver-white mane starting from the head to its chin, passing through the cheeks. Right? That is why its name is beard ape. Right? It mostly spends its lives on trees. Kyun? Because it eats fruits, flowers, small leaves, sometimes eat insects by taking from the bark of the trees, so it hardly comes down. Okay, it spends its most of the life on trees, most of the time on trees. Any other doubt to anyone if you want to ask? Okay, any other doubt? Hurriedly if you want to ask. Hurry up.